Welcome back. This is lecture 19 of shares and debentures. And this is subject company accounts and audit for CMA intermediate. June 2022 attempt. ठीक है, ये हमारा lecture 19 shares and debentures का. तो हम forfeiture of shares में थे, correct? उसके last two problems हमको देखना था. Illustrations 19 to 21. हम illustration 20 we had read illustration 20, correct? So illustration 20 हमने पढ़े थे. मैंने आपको बोला था कि आप देख के आएंगे, ठीक है? तो illustration 20 मैं कराता हूं अभी आपको, और 21 जो है मैं प्रॉब्लम आपको पढ़ा दूंगा अभी. ओके, सो we'll just read the problem 21. okay, keep it as homework for now. Later on we'll do it. बाद में जब हम second time revision के लाएंगे तब हम करेंगे. अगर बीच में आपको पूछना हो तो you can ask me. थोड़ा सा different problem है 21. So I'll just read and just explain आपको कि कैसे करना है वो मैं बता दूंगा. Okay, then in detail we'll do later. So आपको it's like an homework. If you want to attempt, you can attempt. फिर 20 के बाद we'll start buyback of shares. Okay. So study material में हम जा रहे हैं. Okay, ये this was illustration 20, right? जो हमने last class में we had read this. इसमें देखिए खासियत क्या है? There is one speciality in this problem. X Limited issued 10,000 equity shares of 10 each. ठीक है? Premium is 2 per share. Payable 3 on application, including premium of 1. Okay, 4 on allotment, including balance of premium. यानी यहाँ पे क्या हुआ है? प्रीमियम को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है. एप्लीकेशन में 1 रुपया ले रहा है प्रीमियम का, और अलॉटमेंट में 1 रुपया ले रहा है प्रीमियम का. ओके, so it's taking 1 rupee of premium on application and 1 on allotment. Okay, so that is different in this problem from all other problems we have seen. Okay, तो जब भी these kind of shares will be forfeited, remember जो प्रीमियम नहीं दिया होता, the premium which we have not paid, okay, that is always debited, right? जो प्रीमियम हमने रिसीव नहीं किए कंपनी ने, उसको हम डेबिट कर देते हैं, right? प्रीमियम which is received, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, right? It goes to security premium और वहीं पे रहता है. Okay, so ऐसे केसेस में because premium is in 2 installments, तो होगा क्या ऐसे केस में? एक्चुअली your for the installment where premium is received, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. If say the allotment installment is unpaid, ठीक है, and 1 rupee is premium in that, so that 1 rupee will be debited. The application के साथ जो premium का 1 rupee, that will not be debited. ठीक है, if he has not paid from allotment. ठीक है, हम देखते हैं problem, will see. आपको point, I hope you are able to get the point. ठीक है, जैसे जैसे हम problem और करेंगे, you will get it. So, and balance on a call. Balance in the call means 3 on application, 1 was premium, and 2 हो गया application face value. 4 था allotment, 1 is premium, so 3 is allotment, right? 3 allotment का face value part. So 2 plus 3 5 हो गया. Balance on call means call में 5 rupees. Okay, so 5 rupees is on call. Then what are they saying? Public subscribed for 12,000 shares. 12,000, 10,000 is what we issued, 12,000 is what they subscribed for. Okay, so 2,000 extra. Now excess application money is refunded. Refund कर दी. Okay, so straight away 2,000 will be refunded. फिर क्या? One shareholder, Mr. A, holds 50 shares. ठीक है, shareholder Mr. A is holding 50 shares. Paid the call money along with allotment. This is calls in advance. ठीक है, so 50 shares अपने 5 रुपए कॉल के एडवांस में दे दिया. एंड यहीं पे हम बता सकते हैं 50 into 5 मैंने 250 एक्स्ट्रा दिया होगा उसमें बेसिकली. करेक्ट, 5 रुपया पर शेयर into 50. Okay, so that is what, that's your calls in advance. Okay, 50 वाला calls in advance. Now another Mr. B failed to pay allotment and call.
for 30 shares. That means he paid application, obviously, right? And he did not pay allotment and call on 30 shares. Okay. Now these shares were forfeited. So our focus will be main on forfeiture. Okay. All the previous part is of issue. These shares are forfeited after the call, and 25 of those were reissued at 9 each. Okay. So they reissued at a discount of 1. Okay. So 25 reissue हो गए, 5 को वैसे ही रखे. You've kept 5. Pass entries. चलो. So let's see. So इसमें numbers are not big, right? So from the point of view of numbers, सब छोटे-छोटे numbers आप देखिए 10,000, 12,000, 50, 30, okay. चलो अपन let's start. तब issue के part में I'll go little fast. आप लोगों को issue आता है अच्छे से, okay? You all know issue now. फिर भी हम करेंगे. सबसे first होता है bank account debited to application, equity shares application account. 12,000 into 3 rupees was application, okay. So 36,000 in all ये हो गया. अब now refund की entry यहाँ straight away अलग से कर दिया है इन्होंने, ठीक है. So जैसे मैंने बोला कि इसको आप breakup भी कर सकते हैं. So the thing is like the date when you are refunding it and the date when you are posting it to share capital, it can always be different, ठीक है. So entries को split करते हैं या नहीं, वो theoretically decide नहीं होते, वो practically decide होता है based on the date of your entry, ठीक है. So these two entries आप club भी कर सकते हो और you can do it separately also, जैसे इन्होंने किया. So you can club it or you can do it together as well. चलो refund कितना हुआ? Equity share application debited to bank, we know that entry, ठीक है. 2,000 पूरा refund हो गया. Okay, so this is done. Then transfer of share application to share capital, ये due की entry जो है application की. Okay, so equity share application account debited 10,000, okay, into 3, और इसमें से है share capital में 10,000 into 2 जाएगा, and 10,000 into 2 for share capital, securities premium 10,000 into 1, ठीक है. 2 rupees was your capital, 1 rupee was your premium, ऐसे 3 रुपए थे application का installment. Okay, so this is the money you have got, ठीक है. इतना हो गया, right? Now let's go to allotment. So first due की entry से start होती है, second installment से. Equity share allotment debited 4 was with premium 4 था ना allotment, so 4 into 10,000, 40,000. okay, it was 4 into 10,000 and capital is 3 and premium was 1 करके 2 installment में premium लिया था उसने, right? Correct. So equity share capital is 30,000 and securities premium is 1, ठीक है. So ये हो गया आपका due की entry. And now we will see receipt. Okay, so अभी जो there were 2 people, right? One with 50 shares, one with 30 shares. So 50 वाले ने क्या किया हमको, he paid calls in advance, ठीक है. So और 30 वाले ने क्या किया, उसने दिया ही नहीं. So here यहाँ पे जो है ना arrears की entry, again they have split with advanced entry. Okay, this is your arrears entry. यहाँ पे bank account debited 9960 कैसे, 10,000 minus 30. 10,000 is the total shares, 30 निकाल दो उसमें से, so 9970 हो गया. बाकी 9970 into 4 we would have got, ठीक है. Only 30 we didn't get, right? इसके अलावा 50 ने extra दिए हैं, right? 50 shares, वो that entry has been separated out. Into 4 you will get this much. Then calls in arrears जो 30 जो बच गए, that is arrears, okay, 120 and equity share allotment is 40,000, ठीक है. ये हो गया. Then this is ये आपकी advance की entry. सर एडवांस की एंट्री कंबाइन कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं. ये दोनों एंट्री आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है. ये भी कंबाइन कर सकते हैं आप, ये भी कंबाइन कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ओनली आप कंबाइन कब नहीं कर सकते, व्हेन दे हैव गिवन यू डेट्स और दोनों के डेट अलग अलग, तब कंबाइन नहीं होगा.
ओके, सो प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी ऐसे ही होता है। अगर जैसे ये सब एक साथ हो गया, कंबाइन करके एंट्री कर देंगे आप। इसके डेट्स अलग अलग हो गए तो आप स्प्लिट करके करेंगे। ओके, नेट इफेक्ट तो चेंज नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो कंबाइन करते हैं या नहीं, ये थियोरेटिकली डिसाइड नहीं होता, प्रैक्टिकली डिसाइड होता है एक्चुअली, किस डेट में हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन द अकाउंटेंट इज डूइंग दैट, बेस्ड ऑन दैट इट हैपेंस। ठीक है, so ये दोनों डेफिनेटली यू कैन कंबाइन। ये है, यहाँ पे देखिए गलती से कॉल्स इन अरियर डाल दिया, ये होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज दिस कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, और कितना मिला आपको? 50 शेयर थे, 5 दिया कॉल्स, 250। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्स इन एडवांस। ये आपको समझ में भी आ जाएगा एक्चुअली, बिकॉज एट दिस स्टेज ऑफ कोर्स आपको अरियर्स और एडवांस में फर्क मालूम होगा, राइट? You all would be knowing the clear difference between arrears and advance. ठीक है, okay, so next will be call share call due. So due पूरा 10,000 का 5 will be due, right? First and final call due to share capital, ये आपका हो जाएगा 50,000। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए, अब जब ये वाला पैसे मिलेंगे हमको, when we will get call money, okay, that time we will not get for 30 shares because he didn't pay, और जो 50 जिसने पहले ही दे दिया वो भी नहीं देगा, करेक्ट, बिकॉज he has already paid. So 80 shares आपको नहीं दे रहे हैं अभी, करेक्ट, 80 shares are not paying. That is why this is 9920, 10,000 minus 80. ठीक है, so bank account, the money which you will actually get for call will be 9920 into 5. Okay, ठीक है, okay, so bank account debited 9920 into 5, you will get this. Okay, and then calls in arrears debited 30, again we didn't get. Okay, so calls in arrears debited 150, 30 into 5. ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस को क्यों डेबिट करोगे? जब कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट किए थे हमने, ठीक है, सो वो अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि ये पैसा हमको मिल गया है और ये पैसा हमको पहले मिल गया। ओके, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड नाउ एंड क्लोज्ड। जैसे नाउ कॉल्स इन एडवांस का ड्यू डेट जैसे आ गया है, एक्चुअल ड्यू डेट नाउ, सो यू विल डेबिट द अकाउंट एंड क्लोज इट। सो कॉल्स इन एडवांस जो पर्सनल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, विद दिस, राइट? सो कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड 250। अब ये टोटल जो है आपका 50,000 से क्रेडिट कर लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये पूरा जो एंट्री मैंने बताया आपको, ये सब हमारे इश्यू पार्ट की एंट्रीज है टिल नाउ। ओके, सो ये हो गया अभी हमारा। नाउ वी विल सी द फॉरफीचर पार्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले फॉरफीचर का नाम आया कि सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? शेयर कैपिटल डेबिटेड। फॉरफीचर का नाम जैसे आया, इमीडिएटली इट शुड रिंग अ बेल कि आपका शेयर कैपिटल डेबिटेड। ठीक है, क्योंकि हमको शेयर कैपिटल को काटना है। तो फॉरफिट कितना? 30 शेयर्स को किए, वी हैव फॉरफिटेड 30 शेयर्स। तो 30 into 10 ऑलवेज बाय फेस वैल्यू। ठीक है, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है, प्रीमियम नहीं जाता है। ठीक है, तो फेस वैल्यू ही आपका, आप कैंसिल भी करोगे। सो व्हेन यू डेबिट इट, इट विल ऑलवेज बी फॉर फेस वैल्यू। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड बाय 1, 30 into 1। व्हाई? जो एप्लीकेशन के साथ जो मिला हम उसको नहीं ले रहे, वो तो चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, the one which we did not get with allotment 1 rupee, that is what we are cancelling now. अभी शेयर ही नहीं रह गया तो उसका अरियर्स का मेंटेन करके क्या करेंगे, राइट? सो ऑल अरियर्स विल बी क्लोज्ड आउट नाउ। So this security premium which has not been received, 30, will be cancelled. Okay, so this will be all calls in arrears now. Okay, this will contain all calls in arrears. So basically आपका क्या क्या, what he did not pay, allotment 4 rupees he didn't pay। ठीक है, 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपये नहीं दिया उसका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अकाउंट इज ओपन फॉर हिम, जो कॉल्स इन अरियर्स उसका है 4 रुपीज एंड 5 रुपीज फॉर कॉल्स। ठीक है, सो 9 रुपीज का ओपन है। ठीक है, दैट वी हैव टू क्लोज नाउ, 9 रुपीज कॉल्स इन अरियर्स।
So 9 3s are 27, so 270. ठीक है, तो इससे हमने ऑल कॉल्स इन अरियर्स क्लोज कर दी। सो बेसिकली इन फोरफीचर में क्या कर रहे हैं आप, उसका शेयर सब कुछ जो जो उसके नाम से ओपन है वो सब आप क्लोज कर रहे हो, यू आर क्लोजिंग एवरीथिंग। ओके, सो कॉल्स इन अरियर्स इज 270, देन शेयर्स फोरफिटेड, कितना प्रॉफिट मिला हमको, कितना पैसे उसने दिया हमने वापस नहीं की, दैट वाज 2 रुपीज, राइट। ठीक है, यहाँ पे अगेन शेयर कैपिटल का पार्ट हम करेंगे शेयर्स फॉरफिटेड में, करेक्ट, क्योंकि जो 1 रुपी हैज ऑलरेडी गॉन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर्स फॉरफिटेड इज 30 into 2 60 रुपीज। ओके, ये एंट्री समझ गई सबको? ओके, the last time we are discussing this entry again. Okay, now in this chapter, तो ये इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं एंट्री। इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो चलिए अब नाउ हम इसको री इश्यू करेंगे। ओके, सो नाउ री इश्यू हम कितना कर रहे हैं, वी आर री इश्यूइंग ओनली 25। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 25 into 9 रुपीज में री इश्यू कर रहे हैं, राइट। So the discount of 1 will be taken from shares forfeited account. ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड 25। आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना था पहले, अनदर कलर, ये आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट था। ओके, इसमें से आपने निकाल लिए 25 और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड 25 into 10। ठीक है, 25 शेयर्स का 10 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल बन गया अपना। अब हमको कैपिटल रिजर्व में डालना है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, 60 रुपया था ये, और ये 25 यानी 35 जाएगा। 35 will go to कैपिटल रिजर्व, नो है ना? सर। यस, नो? सर बिकॉज 30 शेयर इशू किए, उसमें से 25 ही री इशू किए हैं सर, 5 अभी लेफ्ट है। क्या? सर 30 शेयर में सिर्फ 25 ही री इशू किए हैं, तो पूरा थोड़ी जाएगा। करेक्ट। ओके, तो इसमें जो है कभी भी आपको ये देखना है, जितना आप री इश्यू कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे आपका 25, ठीक है, 25 आप री इश्यू कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो 60 है ना, ये वाला जो 60 है, ये दिस वन, सो दिस 60 ये आपका पूरा फॉरफिटेड अमाउंट है। ओके, जस्ट यू हैव टू इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे। एक रहेगा 25 यू आर इश्यूइंग, राइट, 25 upon 30। ठीक है, दूसरा रहेगा 60 into 5/30 बैलेंस, मतलब दिस बैलेंस पार्ट ये जो है, दिस विल रिमेन इन शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। The balance part of 60 into 5/30 will remain in shares forfeited account. ये कितना आ रहा है, 60 into 25/30? 50. This is 50. So this is 50. ठीक है, फिर now ये जो this 50 है, इस 50 को इस 25 से ऑफसेट करेंगे। Balance will go to capital reserve 25. Okay, so 50 minus 25 will give 25 and it will go here. और यहाँ पे 50 था, दूसरा यहाँ पे 60, 10 रुपीज विल स्टे इन शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, दैट यू कैन नॉट टच। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? ओके, सो रीइश्यू इज डन, देन शेयर्स फॉरफिटेड डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 25 कैसे आ गया हमने देख लिया। ओके, सो बेसिकली दिस 50 वी टुक, और इसमें से ये 25 वाज डिस्काउंट, the balance is capital. Okay, सर जो 1 रुपया प्रीमियम का लॉस हुआ वो क्या होगा उसका ट्रीटमेंट? कौन सा 1 रुपया जो अलॉटमेंट में 1 रुपया का जो प्रीमियम था उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वो तो नुकसान हो जाएगा ना? हाँ, उसका जो अभी इसमें देखिए हुआ ये कि आपका जो 1 रुपया नुकसान जो हुआ री इश्यू में, ठीक है, वो 1 रुपया जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वो 1 रुपया 25 शेयर में 25 रुपए का आपका नुकसान हुआ, और आपने जब जो शेयर्स उसके ओरिजिनल शेयर्स जो फॉरफिट किए थे
उसमें आपको 60 रुपीज का फायदा हुआ, करेक्ट? तो 60 रुपीज का फायदा हुआ, लेकिन 60 रुपीज में हमने दो पार्ट में स्प्लिट किए। हमने बोले कि जो शेयर री इश्यू कर रहे हैं उसमें हमको 50 का प्रॉफिट हुआ, बाकी 10 तो अभी री इश्यू नहीं हुए, तो उसको अलग कर दिया हमने। ओके, सो ये 50 आपका प्रॉफिट है, और नीचे जो 25 है ये 25 आपका डिस्काउंट का लॉस है, ठीक है? तो इसीलिए हमने ये 50 में से ये 25 माइनस किए, और बचा अमाउंट ही हम कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं। ओके, so what we have done is we have first split the shares forfeited account, the capital profit which we received, into two parts. One was 25 shares which we are reissuing, the other is 5 shares which we are not reissuing. That 5 shares is 10 rupees, it will remain in shares forfeited account. What we have reissued, that 50 will be used to offset the discount on the reissue of forfeited shares, which is 25. Okay, that is 25 into 1 rupee discount. So now this 50 minus 25 gives us the profit, capital reserve. Now capital reserve can be freely used for all capital purposes, but shares forfeited account cannot be used. Okay, this is this problem. Now ये वाला जो ये last problem है, ये फिर कभी हम करेंगे, not now, but we will do it later. जब भी when we'll come back with revision, जब हम देखेंगे थोड़ा बहुत कुछ if anything has been missed, कोई प्रॉब्लम छूटे होंगे तो वो सब हम करेंगे। ओके, so this is the last problem of forfeiture. मैं आपको सिर्फ पढ़ के I just want to tell you what is different in this problem, कि आपको अगर ट्राई करना हो तो आप कर सकते हैं। If you want to ask me after trying, you can do that. Okay, so as of now I'm considering it as homework, but we will come back with this problem later on. ठीक है, इसमें क्या है in this problem? JP Limited issued 6,000 equity shares of 10 each. 60,000 equity shares of 10 each, premium 2.5 per share. ठीक है, amount payable on application 4.5 with premium. So premium is collected with application. ठीक है, amount payable on allotment was 4 per share, and equivalent sum was due on call. ठीक है, तो यानी क्या हो गया, equivalent से मतलब 4 allotment 4 call. Okay, and application is 2 rupees capital component, 2.5 premium. Okay, so now they have received application for 1,10,000 shares. ठीक है, so oversubscribed by 50,000. ठीक है, 60,000 plus 50,000 will give you 1,10,000. And after consulting stock exchange, so ये सब में हमको हमारा इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, जो नेट करना है जो बोलेगा बोर्ड, that we will pass the entries with. Okay, so after consulting with stock exchange, the following scheme for allotment was decided upon. So basically मैं आपको ये टेबल समझाना चाहता हूँ और कुछ नहीं, other than this बाकी सब आपका नॉर्मल है। Okay, now in this table ये देखिए grouping of shares जो है ना यहाँ पे, right? So they have basically divided all shareholders into 3 categories, A, B and C. ठीक है, A, B and C में उन्होंने डिवाइड किए हैं, और if the number of applications received, for the number of applications which were 1,200, ठीक है, 1,200 जो है ऐसे एप्लीकेशंस मिले जिसमें उनको चाहिए था between 1 and 100 शेयर्स, वो मतलब है इसका। ठीक है, यानी किसी ये 1,200 एप्लीकेशंस उनको मिले, किसी में किसी को 2 शेयर चाहिए था, किसी को 6 चाहिए था, किसी को 80 चाहिए था। ठीक है, मैक्सिमम टिल 100. व्हाट दिस टू फर्स्ट टू कॉलम मींस इज द सेकंड लाइन इन फैक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,200 between 1 to 100, यानी 1,200 people wanted shares between 1 to 100. Similarly, 175 people wanted shares between 101 to 500, and 5 wanted shares over 500. ठीक है, बस यही एक ग्रुप है, ये ग्रुपिंग का कोई खास यूज नहीं है। ओके, देन द लास्ट 2 जो आपका लाइंस है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ। ये हमको बताता है लास्ट मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 70,000 है। 70,000 एप्लीकेशंस आपको टोटली मिले हैं फ्रॉम दीज पीपल। ठीक है,
जिसमें यूनिक पीपल है 1200, ठीक है। इसमें आपको यू हैव गॉट 70,000 एप्लीकेशंस, जिसको हमने अलॉट किया शेयर 42,000। सिमिलरली यू हैव गॉट 35,000 एप्लीकेशंस where shares allotted were 14,000। ये इसका ये है। और ये जो ग्रीन लाइन है, यही आपको यू हैव टू यूज दिस, ठीक है। कैसे, किसके लिए आप यूज करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आगे पढ़ता हूँ, ठीक है, सी हियर जस्ट इफ आई गो बिलो, it was decided that the excess amount received on applications would be utilized for paying allotment। जो excess on applications है आप allotment के लिए यूज करेंगे, and surplus would be refunded। अगर इतना सरप्लस है कि अलॉटमेंट भी पूरा हो गया आपका और पैसे बचे हैं, तो देन यू विल रिफंड इट, ठीक है। तो now Sanjay was one of the applicants belonging to category A। category A मतलब ये वाला, okay। Sanjay belongs to this category and he had applied for 100 shares, ठीक है। 100 shares applied अगर किया तो आपको with this data आपको क्या मिलेगा, just do 100 into 42,000 upon 70,000, ठीक है। अगर उसको 100 शेयर्स मिला, ठीक है, तो सॉरी अदर वे राउंड, नहीं अप्लाइड फॉर एन एप्लीकेशन, अगर उसने किया 100 शेयर्स, ठीक है, इसने अप्लाई किया 100 शेयर्स के लिए, तो उसको शेयर कितने मिले होंगे उसके लिए ये दिया गया है, ओके। यू हैव बीन गिवन दिस जस्ट टू फाइंड आउट हाउ मेनी शेयर्स दे हैव गॉट। सो 100 वाले को 100 into 42,000 upon 70,000, ओके, ठीक है। ऐसा बस ये आपको करना है। एंड और यहाँ पे आपको बताया विवेक who belong to category C and who had been allotted 800 shares। यहाँ पे क्या बोल रहा, he has been applied, first they said he had applied for, तो 100 अप्लाई किया, तो जब 70,000 अप्लाई किया तो 42,000 मिला, तो 100 को कितना मिला, सो इनटू 42 upon 70, ठीक है। दिस इज हाउ वी गॉट फर्स्ट। सेकेंड केस में उल्टा हो जाएगा, यहाँ आपको दे हैव गिवन शेयर्स और आपको एप्लीकेशंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, दिस कैटेगरी सी, सो इनटू 5,000 upon 4,000 करना पड़ेगा, ओके। ओनली देन यू विल गेट द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। क्यों चाहिए आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, तभी आपको पता चलेगा कि अलॉटमेंट में कितने पैसे एडजस्ट हुए थे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चर्ड। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, ठीक है। मैंने बस आपको बता दिया कि किस तरह से, जैसे इसमें आपको फ्लो कैसा रहेगा करके इस प्रॉब्लम का, ओके। सो अदरवाइज देन वी विल डू दिस लेटर। सो मैं एक काम यहाँ पे आई विल जस्ट मार्क इट हियर इटसेल्फ so that when we come back with revision, सर एग्जाम में तो आते होगा नहीं इस लेवल का, इतना हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सही में अगर इफ ये प्रॉब्लम आपको करना होगा ना, आपको 1 आवर लगेंगे, ठीक है। और अगर 1 आवर लगते हैं आपको 3 आवर्स के लिए, दे आर गिविंग 100 मार्क्स, तो 1 आवर के लिए कितना 33 मार्क्स उनको देना पड़ेगा ये प्रॉब्लम बाय दैट वे, ओके। तो इसीलिए मतलब आपको मैक्सिमम यू विल गेट प्रॉब्लम्स जो आप आधे घंटे तक कर पाओ, ओके। हाईएस्ट विल बी आधे घंटे, तो इतना लेंदी जस्ट नॉट पॉसिबल। कि ये सब हम करते हैं, ये सब जस्ट टू अपना लॉजिक को और परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि हार्डर प्रॉब्लम करने से जब एग्जाम में इजियर आते हैं तो वी कैन डू इजीली, तो इसीलिए हम करते हैं। सर लास्ट में एक क्वेश्चन इस तरह करा ही दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। हाँ लास्ट में मतलब प्रैक्टिस करा दीजिएगा इस तरह क्वेश्चन का। हाँ, ये सारे जो शेयर के जो है ना, हम लोग आपके जितने भी चैप्टर्स है ना, जो भी वॉट एवर आई एम डूइंग, ठीक है, इसको होमवर्क करके मैंने डाल दिया है, ये सेव भी कर लिया। सो जब व्हेन आई विल कम बैक ये हमको दिखेगा, विल डू दिस, ठीक है। सो whatever subjects I am taking, you will have 3 revisions in all. तो 1 is जब हम कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड जो है ना, विद इन 30 to 45 days आपके ये चैप्टर का रिविजन में कराऊंगा अगेन, ठीक है। तब हम इसके मेन प्रॉब्लम्स उठा के वो सब करेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम कवर कर सके, बट
आपको ऑलरेडी नॉलेज रहेगा तो इट विल लेट अस गो लिटिल फास्ट, ठीक है। तो वो एक रिवीजन आपका हो जाएगा, इसमें आप और परफेक्ट हो जाएंगे आप। लास्ट जो है मई में हम थर्ड रिवीजन करेंगे और इट विल बी इवन मोर डिटेल्ड थर्ड वाला। लेकिन जो थर्ड वाला हम करेंगे ना, उसमें वी विल फोकस ऑन दोज प्रॉब्लम जिसका एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है, ठीक है। जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम है, ये सब में फोकस नहीं करेंगे हम, जिसका चांस बहुत कम है या इम्पॉसिबल। ओके, रादर विल जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स जो कि जस्ट आपको 20-25 डेज में एग्जाम होने वाला है, इट विल बी दैट सिनेरियो, करेक्ट। तो थर्ड रिवीजन में हम स्कैनर में ज्यादा फोकस करेंगे, जो पूछा गया है पहले उसमें ज्यादा फोकस करेंगे, स्टडी मटेरियल में भी के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, we'll do like that. So we'll do problems of scanners and all. So overall 3 revisions, including the first one which we are doing now. इसको तो technically you can't call it a revision, लेकिन overall 3 repetitions होगा आपका। तो उसमें आपको जो है ना अच्छे से आप परफेक्ट हो जाओगे। बस जस्ट अटेंड द क्लासेस। मैं वही बोलता हूँ, अगर नहीं भी करते हो तो वीडियोस तो भी आप लोग देख लिया करो। ओके, उस वीक के वीडियोस उस वीक में खत्म हो जाने चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड सम टाइम, ठीक है। तो पूरे जो है कवर होंगे। और लास्ट रिवीजन तो अटेंड करना ही करना है। जो मई वाला है ना, ये मई में मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स, ये सब चीजें टेल यू विच विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्जाम्स, ठीक है। सो मई वाला तो अटेंड करना ही करना है। ओके, तो चलो ये प्रॉब्लम था। ये देखिए इसका सोल्यूशन ही कहाँ तक जा रहा है। ओके, चलिए यार, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो हम maybe what we can do is you can, नया टॉपिक है इसलिए हम एक मिनट, 1 मिनट। ओके, दिस इज बायबैक ऑफ शेयर्स। व्हाट आई विल डू इज, ठीक है, अभी थोड़ा ही टाइम है, सो लेट अस कम बैक, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। तो अभी यू कैन कम बैक एट 7:45, ठीक है। 7:45 से चालू करते हैं। ओके, अभी 7:34 हो रहा है ना, स्टार्ट एट 7:45। बायबैक इज अ सेपरेट टॉपिक, इसलिए इसको बीच में से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो विल मीट एट 7:45, सेम लिंक। ओके, बाय।